Hello students, how are you all? Today we'll start a new chapter 8. That name is cell structural and functional unit of the life. Let's start. There is a special branch of science in which we study about cell. That is called साइटोलॉजी. ठीक है कि एक ब्रांच है बेटा साइंस की इन विच स्टडी अबाउट सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी. ओके, फिर हम बात करें बेटा कि जो सेल होती है, सेल इज दी स्ट्रक्चरल functional and biological unit of the life of living organisms. Okay, each and every living organism's body is made up of by cell. Clear? On the basis of the number of the cell in the body organization, there are two kinds of living organisms. Okay, on the basis of the number of the cell, there are two kinds of living organisms. First, unicellular or single celled organisms, and second is multicellular organisms. Okay, तो आप जाने बेटा कि on the basis of the number of the cells there are two kinds of living organisms. कुछ living organisms are made up of by only single cell. Okay, or in other words we can say that single cell makes whole body of these organisms. Okay, they are known as unicellular organisms. Okay, and in case of some living organisms, their body is made up of by many cells. Okay, and these living organisms are known as multicellular living organisms. ठीक है, अब इसमें आपको एग्जांपल दूंगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है. ओके, these all living organisms are example of unicellular living organisms because their whole body contain single cell. Okay, तो हम बात करें बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हर्ट्स हैं,
ठीक है, मंकी है, डंकी है, ठीक है, काउ, बफेलो एंड हायर प्लांट्स, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर organisms because their body contain many cells. ओके, अब बात चल रही बेटा अपनी कि हमने बोला है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल after this functional and biological unit of the life. Okay, for your kind information, the life of living organism is started फ्रॉम ए सिंगल सेल. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ह्यूमन बींग्स का. ठीक है, कि भाई हमारा जो पूरी बॉडी है, ठीक है, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर एक सिंगल सेल से किस तरह बनती है. ठीक है, we are higher living organisms, we show sexual reproduction. Okay, and during sexual reproduction male sex cell fuses with female sex cells. Okay, it is called fertilization. Okay, and human beings show internal fertilization. The fusion of male and female gametes takes place inside the female's body. Okay, and during fusion of male and female sex cell, one complete egg cell is formed, that is called zygote. Okay, जाइगोट एग्जाम्पल है बेटा डिप्लॉइड सेल्स का. ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ओके, सेल डिवीजन प्रोसेस टेक्स प्लेस. जाइगोट डिवाइड्स, ओके, एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर ऑफ मैनी सेल्स ग्रुप. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोरुला. कि जब ये डिवीजन होगा जाइगोट के अंदर, ठीक है, तो बहुत सारी सेल्स बनेंगी एंड द ग्रुप ऑफ दीज मैनी सेल्स फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मोरुला. The formation of morula, it is called morulation. After formation of morula, these cells join with each other and form 8 to 16 cells group, that is called blastula. Morula से क्या बना? Blastula. Okay, after formation of blastula, the group of 4 cells make another structure that is called gastrula. After formation of gastrula, 3 skin layer formation takes place. There are 3 skin layers in case of human beings. Outer skin layer is known as ectoderm, middle skin layer is known as mesoderm and inner skin layer is known as endoderm. ठीक है, और फिर क्या होगा बेटा, गैस्ट्रुला से फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फीटस से यंग वन बेबी बनेगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस सिंगल सेल ने, सिंगल सेल कौन सी बेटा, जाइगोट. ठीक है, जाइगोट से बना मोरुला. ठीक है, मोरुला से बना ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बना ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, फिर बना गैस्ट्रुला, फिर बना एम्ब्रियो, फिर बना है फीटस और एक प्रॉपर डेवलपमेंट के बाद बन गया है बेटा यंग वन बेबी. ठीक है, क्या बन गया, यंग वन बेबी. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है यंग वन बेबी की, ठीक है, वो किससे बनी है बेटा, एक सिंगल सेल से, एक सिंगल डिप्लॉइड सेल से. नाम है उसका जाइगोट. ठीक है, दैट्स वाई वी कैन से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिर बोला है उसको अपन ने कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दोबारा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बेटा ह्यूमन बींग्स का. ठीक है, कि जैसे नर्व सेल्स होती हैं लिविंग ऑर्गन्स के अंदर. ठीक है,
अब क्या है बेटा कि नर्व सेल्स जो होती है ना बेटा, दे शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी. ओके, नर्व सेल्स ट्रांसपोर्ट outer information in the form of hot, cold, pain into the brain, and our body show response against external stimulus. ठीक है, कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं जैसे हॉट है, कोल्ड है, ठीक है, पेन है, ठीक है, तो उसके आगे हम क्या शो करते हैं, रेस्पॉन्स शो करते हैं. ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, नर्व सेल्स का काम क्या है, सेंसरी नर्व सेल्स, एंड दीज सेंसरी नर्व सेल्स प्रेजेंट इन अवर सेंस ऑर्गन, की जो गॉड ने हमें दी है सेंसरी नर्व सेल्स. ठीक है, दीज सेंसरी नर्व सेल्स अकर्स इन अवर सेंस ऑर्गन्स लाइक इन स्किन, इन आईज, इन ईयर्स एक्सेट्रा. ओके, दीज सेंसरी नर्व सेल्स ट्रांसफर outer information into the brain. Now our brain send signals to बॉडी ऑर्गन्स. ठीक है, जो अफेक्टेड बॉडी ऑर्गन्स होता है वहां पर ब्रेन क्या भेजता है बेटा, सिग्नल भेजता है. किसके लिए, रेस्पॉन्स के लिए. ठीक है, कि भाई जो भी आउटर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे वो हॉट है, कोल्ड है, पेन है, जो भी है, मतलब ठीक है, जो भी आउटर इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है, वो उनको ट्रांसफर किसने कर दिया, सेंसरी नर्व सेल्स ने. कहाँ पर, इनटू द ब्रेन. अब ब्रेन क्या भेज रहा है बेटा, सिग्नल भेज रहे हैं टू अफेक्टेड बॉडी ऑर्गन फॉर रेस्पॉन्स. ठीक है, तो नर्व सेल्स का अलग फंक्शन है. फिर हम बात करें बेटा फैट सेल्स का. फैट सेल्स कौन सी हैं, एडिपोसाइट्स. ठीक है, और जो ये फैट सेल्स होती हैं दे स्टोर फैट. ठीक है, अगर आप सब कोई पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट सेल्स, ठीक है, तो फैट सेल्स स्टोर फैट. ठीक है, फिर हम बात करें मसल सेल्स की. Muscle cells are connected with bones by the help of a proteinous fiber that is called tendon. Okay, and these muscle cells provide help for locomotion, muscular locomotion में help करते हैं. ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं आरबीसी की. आरबीसी occurs in our blood. आरबीसी contain a respiratory pigment that is called hemoglobin. ठीक है, तो जो आरबीसी के अंदर जो hemoglobin pigment होता है, इट सप्लाई ऑक्सीजन इनटू ईच एंड एवरी सेल. ठीक है, तो अभी हमने बोला है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी. ओके, और सिंपली हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, फिर उसको बोला है हमने कि सेल इज द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दे ऑल्सो टेक्स प्लेस इनसाइड दी सेल्स. ठीक है, तो इसलिए जो अब सेल है जिससे हमारी पूरी लाइफ बनी है, ठीक है, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि भाई इसी सेल्स के अंदर जो है काफ़ी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इसको हमने और क्या बोल दिया, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, फिर क्या होता है बेटा कि जो सेल्स है, ठीक है, एक सेल्स तो होती नहीं है, बहुत सारी सेल्स होती हैं. ठीक है, और बहुत सारी सेल्स किससे बनती हैं, ऑफ द बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस. ठीक है, कि जब एक सेल बन जाती है तो बता जस्ट आपको मैंने कि जैसे जायगोट बन गया तो अब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड. ओके, एंड द ग्रुप ऑफ दीज सेल्स मेक टिश्यू. ठीक है, तो आप समझें, द ग्रुप ऑफ चलो सिंपली समझ लें, द ग्रुप ऑफ सिमिलर और dissimilar cells make tissue. Okay,
जैसे मसल सेल्स हैं, द ग्रुप ऑफ मसल सेल्स मेक मस्कुलर टिश्यू, द ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स मेक नर्वस टिश्यू, द ग्रुप ऑफ एपिथेलियम सेल्स मेक एपिथेलियम टिश्यू, द ग्रुप ऑफ ब्लड सेल्स, the group of blood cells make connective fluid tissue, the group of bone cells make connective heart tissue, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि the group of cells, the group of similar and dissimilar cells make tissue, okay, tissue make organ, टिश्यू क्या बना रहे हैं बेटा, ऑर्गन, ठीक है। जैसे अभी स्टोमक है, ठीक है, तो इस स्टोमक के अंदर, स्टोमक क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है। अब इसी स्टोमक के अंदर, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज भी होंगे, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यूज भी होंगे, ठीक है, जो क्या बनाते हैं बेटा, एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मेक ए सिस्टम दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ओके। In our body there are different kinds of systems, respiratory systems, digestive systems. If you are talking about digestive systems, then different groups make whole digestive systems like mouth, oral cavity, pharynx, then after esophagus, then after stomach, then after small intestine, then after large intestine, then after rectum, and at last anus, ठीक है। तो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, इट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो नोस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है, नेजोफेरिंक्स है, फिर ट्रैकिया, विंड पाइप, ओके। ट्रैकिया ओपन्स इनटू ब्रोंचस, ब्रोंचस ओपन्स इनटू ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचियोल्स ओपन्स इनटू एल्वेलाइज, ठीक है। और लंग्स भी एक पार्ट है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मेक होल बॉडी, और अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाएंगे बॉडी, और बॉडी बनाती है स्पीसीज, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेटा स्पीसीज होती है कि भाई वो प्लांट से बिलोंग कर रहा है, प्लांट किंगडम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्या वो एनिमलिया किंगडम से बिलोंग कर रहा है, क्या वो माइक्रोब है, ठीक है। तो उनकी स्पीसीज होती है। जैसे हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज कौन सी है, होमो सैपियंस, ठीक है। होमो तो यहाँ पे क्या है, जीनस है, और सैपियंस का यहाँ पे स्पीसीज है, ठीक है। तो आप समझें कि जो सेल है अपनी, वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, ठीक है, कि कैसे बनती है, मतलब पूरी बॉडी एक सेल से, कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, एक सेल से लाइफ स्टार्ट होती है, फिर वही डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स बनाती है। द ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स मेक टिश्यू, टिश्यू मेक ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मेक ऑर्गन सिस्टम मेक होल बॉडी, एंड बॉडी हैज ए स्पेसिफिक स्पीसीज, ठीक है, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास का हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, ओके, थैंक यू।